Good morning, all the students and friends. And now this is Vijay Singh, and I am going to discuss with you. Topic is the competition of income under the head of other sources. This is the last head of the incomes, fifth head of the incomes. So I already discussed with you all above four heads of the income: income from salary, income from business and profession, income from capital gains, income from house properties, and this is a fifth head of the income. There are five heads of income which we compute as the taxable incomes. So this is the lecture 1, and section 56 to 58 we discuss in that particular section, and unit 4 of income tax law and for practices ka part hai. So let's move. This is a lesson outline of that particular lesson. Lesson means the income from other sources का जो chapter है उसमें हम क्या क्या discuss करेंगे. तो यहाँ आप देख रहे हैं कि first thing we discuss with you the charging section. Section 56 subsection 1 इसमें आएगा. Taxation of dividend. Section 115 O dividend है आपका इसमें. फिर section जो है 2 subsection 22. This is the first lecture. I covered all three things in my first lecture of first part of the video. Then second lecture I discussed taxation of distributed income to the shareholder. Section 115 QA, taxation of income received from the mutual funds and UTI. Third thing is casual income. Fourth thing is interest income. All 4 points are discussed. I will discuss in the second lecture. And income from letting of machine, plant, furniture belonging to SSC. Some receive under the Keyman insurance policy bonus, and taxation of gifts. All three things I will discuss in lecture 3rd. And other miscellaneous provision, reduction section 53(7) and deduction not allowed in section 58 में आएगा. And all these things are discussed in section 4. So let's start with the first lecture. Charging section, taxation of dividend and dividends. तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है. तो बेसिकली द इनकम व्हिच आर नॉट चार्जेबल अंडर द प्रीवियस 4 हेड्स एंड व्हिच आर नॉट एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 10 मस्ट बी चार्ज्ड टू टैक्स एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. ठीक है, जो भी इनकम्स हैं जो अंडर द हेड ऑफ salary, under the head of business and profession, under the head of house property, and the head of the capital gains are not charges, and also which are not exempted under the section 10, they must be charged as income from other sources. इनको हम income from other sources में charge करते हैं. ठीक है. Then second thing आपको याद रखनी है, in addition to the extent taxation of income not covered by other heads. ठीक है. टैक्सेशन ऑफ इनकम नॉट कवर्ड बाय अदर हेड्स, अन्य हेड्स के द्वारा सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 इज स्पेशली प्रोवाइडेड सर्टेन आइटम्स ऑफ इनकम एज बीइंग चार्जेबल टू अंडर द हेड ऑफ इन एवरी केसेस. ठीक है, जो अलग अलग केसेस में जो चार्ज नहीं हुए हैं. एट द एंड ऑफ दिस लेसन स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. आपको क्या समझना आ जाना चाहिए जब तक कि हम बात करें विच आर द इनकम चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. ऐसे कौन कौन से इनकम्स हैं जो अंडर द हेड ऑफ अदर सोर्सेज में आती हैं. डिटरमाइन टैक्सेबिलिटी ऑफ डिविडेंड. डिविडेंड को कैसे टैक्सेबल किया जाएगा. नो एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स. कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स को कैसे हम अप्लाई करते हैं. डिटरमाइन टैक्सेबिलिटी ऑफ कैजुअल इनकम. डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्सेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट. And what are the admissible deductions, कौन सी हैं, and which are the inadmissible deductions, and know what are the provision of taxability of gift in kinds or in cash from relative to or unrelated person. ठीक है, related और unrelated persons को कौन से इनकम्स को आप चार्जेबिलिटी टू टैक्स रख सकते हैं. चलिए सेक्शन जो कवर्ड होने इस पार्टिकुलर सेशन में, इस पार्टिकुलर लेक्चर में नहीं कह सकते पार्टिकुलर. अगर हम टॉपिक की बात करें तो सेक्शन 56 आपका इसमें आएगा. इसमें जनरल चार्जिंग सेक्शन है. 56(2) है स्पेसिफिक चार्जिंग सेक्शन है. सेक्शन 115O है कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स है या बाय डोमेस्टिक कंपनीज. सेक्शन 1034 इसमें है तो वो डिविडेंड रेफर्ड अंडर द 115O एग्जम्पशन की बात की जा रही है. कौन कौन सी एग्जम्पशन इसमें आती है. 115 BBDA टैक्सेबिलिटी ऑफ डिविडेंड इसमें आएगा. 145 मेथड ऑफ अकाउंटिंग जिसको हम कहते हैं. सेक्शन 2 सबसेक्शन 24
डीम्ड डिविडेंड है, सेक्शन 11R है, डिविडेंड टैक्स बाय म्यूचुअल फंड्स, सेक्शन 1035 है, डिविडेंड रेफर्ड अंडर द 115 आर एग्जेम्प्टेड, सेक्शन 115BB रेट ऑफ टैक्स ऑन लॉटरी इनकम्स, 194B सेक्शन आपका TDS ऑन लॉयल्टी, 194BB TDS ऑन हॉर्स रेसिंग, 193 TDS ऑन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, 194A TDS ऑन इंटरेस्ट देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, ठीक है। सेक्शन 10 सबसेक्शन 15 है, इंटरेस्ट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, सेक्शन 57 डिडक्शन एक्सपेंसेस फ्रॉम अदर सोर्सेज, सेक्शन 58 नॉन डिडक्टिबल expenses from other sources. So all these sections will be covered in the particular lesson. Let's move. The first thing is the charging section. Charging section section 56 subsection 1 में आता है कि कौन कौन सी इनकम्स हैं जो चार्ज होती हैं, यानी कि जो अंडर द अदर सोर्सेज में आती हैं। सबसे पहले इनकम ऑफ एवरी काइंड, हर तरह की वो इनकम विच आर नॉट इंक्लूडेड फ्रॉम टोटल इनकम, जो कि अभी तक किसी भी इनकम में नहीं जोड़ी गई है। नॉट चार्जेबल टू टैक्स अंडर द अदर 4 हेड्स, जो किसी अन्य 4 हेड्स में जो हमने डिस्कस की उनमें नहीं आई हो। शैल बी चार्जेबल टू टैक्स इनकम टैक्स अंडर द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, वो इनकम अंडर द अदर सोर्सेज ऑफ हेड में जाएगी, उसको हम अंडर द इनकम ऑफ फ्रॉम अदर सोर्सेज में रखेंगे, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, रेंटल इनकम फ्रॉम वैकेंट लैंड, इनकम फ्रॉम सब लैंडिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, इंटरेस्ट ऑन लोन डिपॉजिट, एग्रीकल्चर इनकम ऑफ इंडिया, ठीक है, आउटसाइड इंडिया जो भी है, फैमिली पेंशन है, इंश्योरेंस कमीशन है, इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज सोर्सेज है, रॉयल्टी है आपकी if not covered in business and profession, received from life insurance policy not exempted, section 10 subsection 10D में अगर आती है, director's fee, commission, director's salary if not chargeable under the salary of MP MLAs etc. All these examples. Then income shall be chargeable under the head of other sources section 56 subsection 2 में कौन कौन सी इनकम्स हैं जो चार्ज होनी चाहिए। डिविडेंड इनकम्स है जो चार्ज होगी, यानी कि अदर सोर्सेज में जाएगी। बिनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, कार्ड गेम्स एक्सेट्रा, ये भी आपकी इनकम अदर सोर्सेज में जाएगी। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज इफ नॉट चार्जेबल अंडर द बिजनेस एंड प्रोफेशन, अगर आपने नहीं चार्ज किए तो यहाँ जाएगा। इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट द प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, इनकम नॉट चार्जेबल अंडर द बिजनेस एंड प्रोफेशन, देन इट कम्स अंडर द अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम composite letting out building together with plant, machinery, furniture which is inseparable from the letting of such building, जो separate नहीं है, अलग से नहीं दिया गया है, तो इसी में आपका include होएगा। if such income not chargeable under the business and profession, then it comes under the other sources. some receive under the कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी है जो मेन पर्सन है उसमें अगर आपको पैसा मिला है, इफ नॉट चार्जेबल अंडर द सैलरी और बिजनेस और प्रोफेशन, तो यहाँ पर आ जाएगा। सम और प्रॉपर्टी रिसीव्ड एज गिफ्ट, अगर आपको गिफ्ट है तो गिफ्ट के रूल्स हैं, उन अमाउंट तक जो एग्जेम्प्टेड है, उसके अलावा जो पैसा है वो यहाँ आ जाएगा। शेयर प्रीमियम इन एक्सेस ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू FMV, जिसको हम कहते हैं, रिसीव बाय क्लोजली हेल्ड कंपनी, जो भी आपके क्लोजली हेल्ड कंपनी है, कोई शेयर प्रीमियम आपको मिले हैं। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कंपनसेशन और द अनहेंस्ड कंपनसेशन, एडवांस और अदर मनी रिसीव्ड इन कोर्स ऑफ नेगोशिएशन फॉर ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, कैपिटल एसेट को बेचने में या ट्रांसफर करने में कोई भी आपको बेनिफिट हुआ है, कोई एडवांस मिला है, कोई अदर मनी आपको मिली है, तो वो यहाँ पर आएगा। if such sum is forfeited, negotiable, do not result in transfer of such capital asset, ठीक है। मेथड ऑफ अकाउंटिंग की बात करें तो इट कम्स अंडर द सेक्शन 145। एज पर सेक्शन 145, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज टू बी कैलकुलेटेड on the basis of cash or mercantile basis and of accounting regularly employed by the SEC. Now the second thing I discuss in that particular lecture, taxation of dividend, section 115, यानी कि 115O जो सेक्शन है वो यहाँ आएगा। पहला है तो एवरी डोमेस्टिक कंपनी की अगर हम बात करें, सेल पे कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, CDT, इसको हम कहते हैं कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। जैसे कि हम लोग जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ऐसी तरह से कॉर्पोरेट टैक्स डिडक्शन होता है, डिविडेंड टैक्स होता है।
तो कोई भी डोमेस्टिक कंपनी है वो कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स पे करती है एट द रेट ऑफ 15%। 15% उसका कम से कम रेट होता है, प्लस 12% सरचार्जेस उस पर लगते हैं, प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता है। तो कुल मिला के ये जो रेट है आपका 15% तो डायरेक्ट टैक्स है, 12% चार्जेस हैं अगर उसकी इनकम जो लाइबिलिटीज है 50 करोड़ इस टाइप से, जो 50 lakhs एंड अबव इनकम्स है तो सर चार्जेस होते हैं। 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता है। तीसरा जो थिंग है वो ऑन डिविडेंड डिक्लेयर्ड ऑन पेड, एक्चुअली पेड और डिक्लेयर्ड बेसिस यानी कि एक्चुअल एंड डीम्ड डिविडेंड के हिसाब से इसमें टैक्स किया जाता है अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 ABCD, अलग अलग सबसेक्शन इनमें, तो उनको हम यहाँ पे देखेंगे। तो स्टैंडर्डली अगर हम बात करें तो एट द रेट ऑफ 30% फॉर डीम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 22E एज फाइनेंस एक्ट 2018 जो है वो यहाँ पे डीम्ड डिविडेंड पे लगता है 30% डिविडेंड। तो ये आपको याद रखना है कि कितना डिविडेंड पे टैक्स लगता है। पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन सी कंपनीज हैं जिनके जो टैक्सेस अदर इनकम्स की हम बात कर रहे हैं। कंपनी इंडियन कंपनी है या अदर कंपनी है। इंडियन कंपनी है तो डोमेस्टिक कंपनी होगी, सेक्शन 2 सबसेक्शन 22A में आएगा, लायबल टू CTTA यानी कि कॉमर्शियल जो आपका कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स है वो यहाँ पर लागू होगा। अदर कंपनीज तो चाहे तो यहाँ अरेंजमेंट फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन फॉर डिविडेंड इन इंडिया, नो अरेंजमेंट, दो चीजें हैं, एक तो अरेंजमेंट है एक अरेंजमेंट नहीं है। अरेंजमेंट तो डोमेस्टिक कंपनी में जाएगा 2 सबसेक्शन 22, और अगर नहीं है तो फॉरेन कंपनी होगी सेक्शन 2 सबसेक्शन 23A नॉट लायबल टू CTT। ये इनको अदर कंपनीज में जो होती है जिनका अरेंजमेंट नहीं है फॉरेन कंपनी को कोई CTT नहीं देना होता है। दूसरी चीज है डिविडेंड इन सेक्शन 115O, अगर हम बात करें 115O इंक्लूड्स द डिविडेंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 ABCD एंड 2 सबसेक्शन 22E अकॉर्डिंग टू फाइनेंस एक्ट 2018। डिविडेंड इंक्लूड्स बोथ इंटरिम एंड फाइनल डिविडेंड, दोनों तरह के डिविडेंड इसमें इंक्लूड होते हैं, इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड। सच कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स इज पेएबल इवन इफ द इनकम टैक्स इज नॉट पेएबल बाय द कंपनी। ठीक है, ये डिविडेंड टैक्स तो पे किए जाएंगे चाहे इनकम टैक्स पेएबल हुआ हो या ना हुआ कंपनी के द्वारा। कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स शैल नॉट बी चार्जेबल, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स को चार्जेबल नहीं कह सकते जब तक कि फॉर डिविडेंड डिक्लेयर distributed or paid by the enterprises engaged in developing and operating and maintaining such as an economic special economic zone. Then corporate dividend tax is not payable on buyback of share by the company. Buyback of share of the company exception है section 115QA, इसका exception है, not payable on buyback of share। अपने कंपनी के अपने खुद ही शेयर खरीदेंगे तो उन पर कोई टैक्स नहीं होगा। नेक्स्ट डिविडेंड क्या है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 में हम क्या कर सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूशन बाय ए कंपनी टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 22A में दिया है, एनी शेयर होल्डर, कोई भी कंपनी किसी भी शेयर होल्डर का जैसा ऑल एंड पार्ट्स ऑफ इट्स एसेट्स। सेक्शन 2 सबसेक्शन 22B में एनी शेयर होल्डर डिवेंचर स्टॉक डिपॉजिट सर्टिफिकेट विद और विदाउट इंटरेस्ट, हम इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी हो सकते हैं, बोनस शेयर अगर आपने दिए हैं। सेक्शन 2 सबसेक्शन 22C है, इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं इसमें, एनी मनी और एसेट ऑन इट्स लिक्विडेशन। सेक्शन 2 सबसेक्शन 22D इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, एनी मनी और एसेट और रिडक्शन ऑफ इट्स कैपिटल टू बी एक्सटेंट ऑफ द एक्युमुलेटेड प्रॉफिट, इसको हम जो है माना जाता है। डीम्ड डिविडेंड की अगर हम बात करें सेक्शन 2 सबसेक्शन 22E में ये जाता है, क्लोजली हेल्ड कंपनी गिवन लोन्स और एडवांसेस टू द particular company or other to specified shareholder. This is the case one. Second thing is to concern in which specified chargeable shareholder is partner or member has substantial interest. Case 2, कोई भी पार्टनर या मेंबर है कंपनी का तो उसका जिसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट अगर हम कंसर्न में होता है तो उसको हम केस 2 में रखते हैं। एनी पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ स्पेसिफाइड शेयर होल्डर, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बिहाफ में काम करता है और बेनिफिट के लिए काम करता है उसको हम स्पेसिफाइड शेयर होल्डर कहते हैं। केस 3, शैल बी डीम्ड एज डिविडेंड टू द एक्सटेंट ऑफ द एक्युमुलेटेड प्रॉफिट, उसको हम डीम्ड डिविडेंड के रूप में जो है एक्युमुलेट कर सकते हैं। तो जो उसको डीम्ड डिविडेंड होगा वो एक्युमुलेटेड प्रॉफिट के रूप में जाएगा। यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कुछ चीजें, पॉइंट टू बी रिमेंबर। स्पेसिफाइड शेयर होल्डर मींस स्पेशल बेनिफिशियल ओनर होल्डिंग एटलीस्ट ऑफ 10% वोटिंग इन द कंपनी, उसको स्पेसिफाइड शेयर होल्डर कहते हैं जो
बेनिफिशियल ऑनर होल्डिंग करता है एटलीस्ट 10% वोटिंग इन द कंपनी। दूसरी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट मींस क्या होता है? सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब है इफ एनी टाइम एट एनी टाइम पर्सन एंटाइटल टू एटलीस्ट 20% ऑफ इनकम ऑफ दैट कंसर्न, यानी कि 20% वोटिंग पावर उसके पास होगी इन केस ऑफ कंपनी। अगर हम बात करें सेक्शन 2 सब सेक्शन 18 की अगर हम बात करें तो कंपनी इन विच द पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, कोई भी कंपनी जिसमें पब्लिक सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड हो, widely held company, a company is said to be company in which the public are substantially interested. जैसे कि it is owned by the government of Reserve Bank of India, interest at least is 40% share held by the government, इसको पब्लिक कंपनी की नॉन प्रॉफिट कंपनी हो सकती है। कंपनी whose principal business is accept deposits from its member, अपने मेंबर से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करे, ऐसी कंपनी। पब्लिक कंपनी एंड इट्स इक्विटी शेयर were listed on last day previous year on the recognized stock exchange, ऐसी कोई भी कंपनी जिसके प्रीवियस ईयर में या फाइनेंशियल ईयर में जो स्टॉक एक्सचेंज में जो शेयर्स है वो रिकॉग्नाइज किए गए हो। कंपनी नॉट कवर्ड अंडर अबव ऑल कैटेगरीज, ठीक है, इन सब कैटेगरीज में जो कवर्ड नहीं होती इज नॉन एज अ क्लोजली हेल्ड कंपनी, उसको हम क्लोजली हेल्ड कंपनी कहेंगे। फोर्थ थिंग आपको ध्यान रखनी है सेक्शन 2 सब सेक्शन 22 में ई में, कवर नॉट advance or loans to shareholder but any other payments by the company on behalf of or for the individual shareholder, such as the payment of personal expenses, insurance premium, etc., to extent of the accumulated profit of the company is comes under the section 2 subsection 22e as per the Finance Act of 2018। ठीक है, तो ये आपको देखना पड़ेगा कि जो नॉट कवर्ड ओनली एडवांसेस, केवल एडवांसेस और लोन को कवर नहीं करते हैं, बट पेमेंट ऑफ कंपनी ऑन बिहाफ और द इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स की जो भी पेमेंट है उनको भी हम यहाँ पर कवर कर सकते हैं। टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ द डिविडेंड इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर, टैक्स ट्रीटमेंट का हम कैसे करेंगे? शेयर होल्डर के हैंड्स में क्या अगर टैक्स ट्रीटमेंट आता है तो सेक्शन 10 सब सेक्शन 34 ये कहता है, ये इंडिविजुअल की बात हो गई। तो डिविडेंड रिसीव फ्रॉम द डोमेस्टिक कंपनी रेफर टू इन सेक्शन 115O शैल बी एग्जेम्प्टेड। ठीक है, अगर किसी भी डोमेस्टिक कंपनी से जो भी डिविडेंड आपको मिला है इट शैल बी एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 115O अगर है तो। दिस सेक्शन इज सब्जेक्ट टू द सेक्शन 115 BBDA। ठीक है, तो ये सेक्शन 10 सबसेक्शन 34 में ये दिया गया है कि टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड एंड हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। सेकंड थिंग सेक्शन 115 BBDA क्या कहता है? टैक्स ऑन डिविडेंड्स रिसीव्ड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी, अगर डोमेस्टिक कंपनी से मिला है तो इन केस ऑफ रेजिडेंट प्लस स्पेसिफाइड SSC अगर कोई है, ठीक है, तो ये दोनों आ जाएगा। दूसरा डिविडेंड एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 है तो एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। एक्सीडिंग ऑफ 10 लाख रुपीज के एग्जाम सच एक्सेस इज टैक्सेबल एज 10% प्लस एप्लीकेबल चार्जेस, जो भी सर चार्जेस है, प्लस 4% ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो होगा वो आपको टैक्सेस लगेंगे। ठीक है, तो 10% से ऊपर अगर आपकी इनकम जा रही है तो आपको 10% टैक्सेबिलिटी होगी, प्लस जो सर चार्जेस है वो लगेंगे, प्लस आपका हेल्थ सेस लगेगा। पॉइंट टू बी रिमेंबर, आपको यहाँ और स्पेसिफाइड ध्यान रखना है, नो डिडक्शन ऑफ एनी एक्सपेंडिचर अलाउड सेट ऑफ लॉसेस शैल बी अलाउड अंडर सेक्शन 115DA। किसी तरह का डिडक्शन या एक्सपेंडिचर जो भी आपने किया वो यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। स्पेसिफाइड SSC की बात करें तो मींस एनी पर्सन अदर देन डोमेस्टिक कंपनी, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो डोमेस्टिक कंपनी नहीं है, फंड, ट्रस्ट, यूनिवर्सिटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल सेक्शन 10 सबसेक्शन 23C और ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12A और अंडर सेक्शन 12AA, तो अगर नहीं है तो वो आपका स्पेसिफाइड SSC कहलाएगा। So thank you very much. This is all about the first lecture of income from other sources, and I discussed with you all three things in that particular session. Thank you very much.